Today I will discuss BASC questions, very short answer type questions of differentiation, which carries 1 marks in our examination CBSE. In the last video, I have already discussed differentiation of one function with respect to another function. अब देखिए ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं. इफ fx is equal to log e log x बेस e है, दोनों में ध्यान रखना है. Then write the value of f dash e. How will solve this problem? यानी first you have to differentiate the function and then put the value at x बराबर e. देखिए first of all differentiating with respect to x, तो ये हो जाएगा f dash x. डिफरेंशिएशन f x का क्या हो जाएगा f dash x. Now you have to differentiate this function log e log x base e. ये मेरा फंक्शन है. तो देखिए आई विल अप्लाई चेन रूल विदाउट चेंजिंग एनी बेस, क्योंकि जो लॉग है उसका बेस ई है. तो देखिए सबसे पहले मैं इसको कैपिटल एक्स ले लूं तो ये लॉग एक्स बचा. लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन नंबर होता है, तो क्या होगा 1 अपॉन लॉग एक्स बेस ई. ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये इस वाले लॉग फंक्शन का हो गया. अब बचा के ये लॉग एक्स बचा, तो अगले टाइम में इसका डिफरेंशिएशन होगा और वो क्या हो गया, वो हो गया 1 अपॉन log x base e और 1 upon x. log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x. Now you have to find f dash e. In place of x you have to put 1 e. तो ये देखिए x a मैंने e डाला into 1 upon e हो गया. और आपको मालूम होना चाहिए कि log e base e की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है. तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 upon e का फाइनल आंसर. Now please see next question, how we simplify or solve. If f dash 1 is equal to 2 is given to you and y is equal to function of log x, find dy dx at x barabar e. This is the question, how we simplify or solve. First of all I will differentiate the given function. My given function is this, so differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equal to d of dx of this function. ध्यान से देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. Now I will do derivative of this number. First of all I will make differentiation of function, so it will be f dash log x base e. ये आ जाएगा, ठीक है. Now I will do the derivative of log x. मैं लिखूंगा d by dx of log of x. इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा f dash log x base e. log x का डेरिवेटिव when base is e 1 upon x. ये हमारा कंसेप्ट है. तो ये dy dx है, लेकिन dy dx किस पर निकालना है, when x बराबर e. तो I will find dy dx at x बराबर e. I will replace the value of x is e. देखिए ये आ गया, ये आ गया. अब यहां से एक बार क्वेश्चन देखिए, बेस ई वैल्यू ई, इसमें लॉग की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती थी. तो मेरे हिसाब से क्या हो गया, f dash 1 हो गया और इनटू में क्या है 1 अपॉन e है. इज गिवन. नाउ इन द क्वेश्चन f dash 1 is equal to 2 is given, so I will replace the value of f dash 1, so the answer will be 2 upon e. Now the next question, if f dash x is equal to 2x square minus 1 is given to you and y is equal to fx, y is equal to fx square is given you. This is the x square. Then find dy dx at x बराबर 1. First of all I will differentiate the given function y बराबर fx square. So differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equal to derivative of this, it will give you f dash x square. Now I will make the differentiation of x square, so I will write d upon dx of x square. So f dash x square into differentiation of x square is a 2x. Now if in the question f dash x is given to you this, so I will write f dash x square. So I place x square in place of x in the original function, so it can be written as this, और x स्क्वायर का स्क्वायर -1.
दिस वैल्यू विल बी x का पावर 4 माइनस 1. ये वैल्यू है एफ डैश एक्स स्क्वायर की. आई विल प्लेस दिस वैल्यू इन दिस कंडीशन. तो d अपॉन dy upon dx is equal to value of this will be 2x to the power 4 minus 1 into 2x. Now I will place, now you have to find value of dy dx at x power 1. So dy by dx at x power 1 is equal to 2 1 to the power 4 minus 1 into 2 into 1. तो ये कितना हो जाएगा 2 minus 1 into 2. Final answer 2 root 1 means 2. That is the answer. Next question. If x lies between pi by 2, 3 pi by 2 and y is given to you in this form, sin inverse sin x. Find dy dx. How will simplify solve this question? This is very tricky or conceptual question. First of all, you have to know the graph of sin inverse sin x. अगर ये आपको ग्राफ क्लियर है तो किस इंटरवल में कौन सी वैल्यू आएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. देखिए मैं कैसे ड्रॉ करूंगा ग्राफ को. यू हैव टू लर्न और रिमेम्बर दिस ग्राफ. जैसे कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल ब्रांचेस है साइन की, वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 रहती है. तो यहां से देखिए ये माइनस पाई बाय 2 है और ये आपका पाई है माइनस का. इट विल बी माइनस पाई, इट विल बी माइनस 3 पाई बाय 2 और इट विल बी माइनस 2 पाई. इन द सेम वे 0 पाई बाय 2, it is the pi by 2 or it is the pi, it is 3 pi by 2 or it is the 2 pi. This is the graph of y is equal to sin inverse sin x function. ठीक है. अब देखिए pi by 2 से माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ये इस तरह से जाता है तो इसकी वैल्यू x आती है. यानी इस इंटरवल में वैल्यू अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या लेंगे, x लेंगे. अब नेक्स्ट देखिए पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में ये इस तरह से जाता है, ये आती है और ये वैल्यू आती है साहब x माइनस पाई. क्या आती है, ये x माइनस पाई आती है आपकी पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 इंटरवल में. अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में इस तरह से जाता है ग्राफ, तो नेक्स्ट में वैल्यू ये बन जाती है. अब देखिए ये जो एंगल होता है ना, ये 45 डिग्री का होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है. और अगर इस तरह का एंगल बनाना है तो 135 का होता है जो कि नेगेटिव होता है. तो देखिए 45 135, तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये आपका पाई माइनस एक्स हो गया. क्या हो गया, ये पाई माइनस एक्स हो गया. और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू होगी एक्स माइनस 2 पाई, इसकी वैल्यू एक्स माइनस 2 पाई. अब देखो ऐसे ही सेम वे ये ऐसे जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये कैसे देगा, ये आपको माइनस एक्स देगा. क्या देगा, इट विल गिव यू माइनस एक्स. और ये इस तरह से जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये क्या देगा आपको, और ये देगा x प्लस पाई. ठीक है, ये x प्लस पाई इस तरह से देगा. ये x देगा, ये माइनस एक्स देगा. ठीक है, और ये माइनस ये माइनस पाई माइनस एक्स देगा और ये x प्लस 2 पाई देगा. इस तरह से चलता है ये. तो अब देखो, अब इसमें इंटरवल क्या है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2. अब ध्यान से देखो, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में क्या वैल्यू आ रही है, पाई माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है. तो इसका मतलब क्या रहा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस नेट फंक्शन की वैल्यू आ गई पाई माइनस एक्स. क्या आ गई, पाई माइनस एक्स आ गई. तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, इसका -1 आ गया. इज द रिक्वायर्ड आंसर. Next question is, if x lies between 0 pi and 2 pi and y is equal to cos inverse cos x is 20. First of all, you have to know how to draw the function of cos inverse cos x. अगर ये कंसेप्ट क्लियर है फिर आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए cos का जो ग्राफ होता है ये देखिए इस तरह से चलता है. अब ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है और ये -2 पाई है. तो देखिए 0 से पाई में ये क्या देगा, इट विल गिव टू यू x, और इसमें ये देगा x माइनस 2 पाई माइनस x. क्या देगा, 2 पाई माइनस x देगा. और आगे क्या देगा, x प्लस 2 पाई देगा. ऐसे चलता है ग्राफ. और ये क्या देगा, ये माइनस देगा. और ये वाला क्या देगा, ये 2 पाई प्लस x देगा. तो यहां से देखिए
हमारा इंटरवल है पाई से लेके 2 पाई तक, तो पाई से 2 पाई में ये वाला फंक्शन आएगा। अगर उसने क्वेश्चन में इंटरवल चेंज कर दिया होता और कहा होता कि -2 पाई से -पाई के बीच में, तो हम ये वाला इंटरवल लेते, ये वाली वैल्यू लेते, ठीक है। और अगर -पाई से 0 होता तो -x लेते। तो एज पर क्वेश्चन देखो पाई से 2 पाई में कौन सा लेना चाहिए, ये वाला, तो इसका ना इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई -x। तो बाई क्या हो गया 2 पाई -x। डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई dx आएगा। देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा और ये x का डेरिवेटिव 1 आएगा, -7 है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया -1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस sin इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 1, देन राइट द वैल्यू ऑफ dy dx। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो बातें बताऊंगा। कॉस जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी दो पॉइंट हैं, एक तो है कॉस इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x होता है, ध्यान से देखना है। ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैं थीटा में रिप्रेजेंट करूं तो थीटा में भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इतना होता है। इज क्लियर टू यू? कॉस इनवर्स 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स थीटा। दूसरा पॉइंट एक ध्यान रखने वाला है, इस साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, ठीक है। हम एक्स भी कह सकते हैं थीटा की जगह। ये दो कंसेप्ट का ध्यान रखेंगे तो देखो मैं सेक इनवर्स को इस फॉर्म को यूज करूंगा तो ये कॉस में आ जाएगा, लेकिन इसका रिवर्स रेसिप्रोकल, तो ऐसा करने से क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, तो ये जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज क्लियर, प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इट इज क्लियर। अब देखिए मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया हुआ है कि जब भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स सेम थीटा हो तो उसका एडिशन वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 2। तो देखो सेम नंबर है x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इसका मतलब ये सेम नंबर की वजह से इसका नेट रिजल्ट क्या आना चाहिए, इस थ्योरी का यूज करते हुए पाई बाय 2 आना चाहिए, पाई बाय 2 आना चाहिए। लेकिन आपको क्या निकालना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू ये क्या है कांस्टेंट नंबर है, पाई बाय 2 इज द कांस्टेंट और कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, तो 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू x mod ऑफ x, फाइंड dy बाई dx फॉर x इज लेस देन टू 0। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू नो हाउ आई विल डिफाइन द मॉडुलस फंक्शन। तो mod x को हम डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी प्लस x, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये माइनस x देता है, और अगर x 0 है तो ये 0 देता है। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा विपरीत शेप आता है, यू मस्ट नो। ये b है और ये प्लस x है और ये माइनस x है, क्योंकि देखिए 45 का एंगल बना रहा है यहां से देखूं तो, और ये 135 का एंगल बना रहा है, इसलिए माइनस से रूप होगा इसका। तो ये मेरी डेफिनेशन हो गई इसकी। अब एज पर क्वेश्चन ये कह रहा है इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है कब, इस कंडीशन पर। तो आप देखिए मॉड x को क्या लिखेंगे, x लेस देन 0 पर माइनस x लिखेंगे, तो क्या होगा मेरा फंक्शन y इक्वल टू x, और मॉड x ये पे क्या होगा व्हेन x इज लेस देन 0 माइनस x होगा। कुल मिला के क्या लिखा जाएगा माइनस x क्या लिखा जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करो, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस dy dx अपॉन 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर, जो कि 2x देगा, तो माइनस 2x। तो फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस 2x इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ mod x इज लेस देन टू 1 एंड y इज गिवन y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहला पॉइंट तो ये कि जो mod x है ना, इसका मतलब है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये इस इंटरवल में अगर लाई करता है माइनस से 1 से प्लस 1 के बीच में, तो ये ऐसा लिखा जाता है। हमने अब ये सीरीज को देखने से लग रहा है ये कैसी सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, और कहां तक जा रही है इन्फिनिटी तक। तो सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी सीरीज, जीपी सीरीज याद करो 11th क्लास की, ये हमारी जीपी होती थी, ये फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो में आ रहा है। तो हमारा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता था, a अपॉन 1 माइनस आर, याद करो। और यहाँ पर r की कंडीशन क्या लिखते थे,
लेस देन टू 1, जब कॉमन रेशियो लेस देन टू 1, वही कंडीशन यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पे कॉमन रेशियो x दे रखा है, तो मॉड x लेस देन टू 1 कंडीशन दे रखी है। तो सीधा सीधा इस फॉर्मूला डालेंगे तो मेरा y की वैल्यू निकल आएगी। तो y क्या आएगा, 1/1 माइनस x आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो यहाँ पर x है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मेरे पास क्या तरीका है, 1 माइनस एक्स पे पावर -1 लिखा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले मुझे पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो -1 माइनस एक्स पे पावर -1 और फिर डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, नंबर का। नंबर क्या है, 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, देखो माइनस माइनस ये आ गया -1, और ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस एक्स पे पावर -2। इट इज क्लियर टू यू। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 कांस्टेंट का 0 है, और ये x का -1 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स पे पावर -2, और मैं कह सकता हूँ 1 माइनस एक्स पे पावर 2, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू दिस। अब du बाई dv निकालना है, तो कैसे करना है, u अपने को दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और b अपने को दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने x बराबर tan थीटा सब्स्टिट्यूशन दे दिया। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये आ गया बेसिक चीज। अब इंटरवल दे रखा है -1 से +1 में, तो देखो बेटे क्या होगा, -1 लेस देन टू tan थीटा लेस देन टू 1, तो ये -π/4 से π/4 में, अगर मैं 2 थीटा करूंगा तो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। तो ये देखो, ये साइन के लिए बेसिक एंगल हो गया, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा आ गई। और मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगी। तो ये du बाई डी एक्स कितना आ गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इन द सेम वे x बराबर tan थीटा यहाँ पे भी लेता हूं, तो क्या होगा, b इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x की जगह थीटा दिया है ना, तो थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का। तो क्या होगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहां से देखो, ये tan का है, अब tan में देखो, ये tan में इंटरवल आ गया -π/2, 2 थीटा से π/2, ये आ जाएगा। तो इसमें tan में देखो, tan में -π/2 से π/2 प्रिंसिपल ब्रांच है, तो ये भी 2 थीटा देगा। क्या देगा, 2 थीटा देगा, तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगी। x की थीटा की वैल्यू हमने, क्योंकि x बराबर tan थीटा सपोज किया था ना, तो dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो dv बाई du अपॉन du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उल्टा करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 1 आएगा आंसर। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, if y is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square, write the value of dy dx for x is greater than 1. This condition given to you. First of all, I will take substitution x for our tan theta, because here 1 plus x square is given. Y is equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is equal to sin inverse. This is the formula of sin 2 theta. तो इट विल बी sin 2 थीटा बाई। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर ये मैं 1 से बड़ा लेता हूं तो व्हाट विल बी देयर, तो थीटा विल बी ग्रेटर देन टू π/4, थीटा ग्रेटर देन टू π/4, 2 थीटा क्या होगा फिर, 2 थीटा ग्रेटर देन टू π/2। अब देखो साइन के केस में अगर वैल्यू π/2 से बड़ी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने आपको ग्राफ समझाया था उसके हिसाब से वैल्यू इस रीजन में आ गई। ये हमारा π/2 से 3π/2 वाला रीजन है, तो इसमें वैल्यू कितनी आती थी, ये π - x हो जाती थी। इट इज क्लियर टू यू।
तो इसका यूज करते हुए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई माइनस 2 और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स कितना x, ये आ गया। नाउ आई विल डिफरेंशिएटिंग दिस, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to, this is the constant, 0 minus 2 or differentiation of tan plus x is 1 upon 1 plus x square. So answer of this question will be minus 2 upon 1 plus x square. In the last of video, स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एवं शेयर करें। आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, जिससे आने वाले वीडियोज में कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सके। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।